Hello friends, I'm going to talk about gynecomastia. Gynecomastia क्या चीज है? What are the components? How is it? कैसे दिखता है? आपको क्या symptoms आते हैं? Why should you treat it? What medicines you have to take? We're going to discuss everything about gynecomastia in the next 6 to 8 minutes. So don't leave this video. इस वीडियो को बिल्कुल भी मत छोड़िए. Whether you want to listen in English या आप हिंदी में सुनना चाहते हैं, I'm going to mix both the languages and make sure कि मैं आपको gynecomastia के बारे में सब कुछ बता सकूं. So feel free to ask questions in the middle as well. First of all, what is gynecomastia? Gynecomastia, I've written here gyne plus mastia, which means female like breast. इसका मतलब अगर आपकी breast आपको comfortable नहीं लगती, it looks like a female, एक lady की तरह आपको feel आती है, that is gynecomastia. Now every gynecomastia will have two components. हर chest में ये दो components होते ही हैं. One is fat, ये chest fat, and second is the gland. Gland nipple की projection create करता है and it is in the center. So this is the gland and this is the fat. Many patients they ask us कि अगर हमें only fat है तो क्या है? Is it gynecomastia? Very simple. Fat या gland makes no difference at all. It does not make any difference at all because 90% of gynecomastias में fat plus gland होता ही है. So now think of a situation. Suppose ये हमारी chest है, ये center का हमारा nipple portion है and this is the gland and this is the fat. Suppose I only take out the gland. So what do? मैं इस gland को हटा देता हूं. What will be the shape of the chest? This chest will become like this with nipple here. So will you like this? क्या आपको ऐसी chest अच्छी लगेगी जिसमें आसपास fat है, center में gland है? Not at all. Second scenario, suppose ये आपकी chest है, nipple है and ये अपना gland है and we remove all the fat. So मैंने liposuction करी, मैंने fat निकाल दिया. But gland हमने ऐसे का ऐसा रखा. What will happen then? The chest will become like this. Fat will be very less, but the gland will remain and there will be a lot of projection. Therefore, whenever we do treatment, we must remove fat and gland both. बहुत rare होता है जिसमें only nipple, gynecomastia जिसको we call as puffy nipple. Now why does it happen? Very simple, puberty. When we are about 12-13 years of age, then in our body the estrogen hormone, so at that time every child, हर बच्चे में estrogen and male hormone testosterone दोनों rise होते हैं. Now suppose testosterone at the age of 12 to 14 is rising like this. Estrogen, जो female hormone है, rises and then it comes down. But this difference, जिसमें estrogen goes higher, will lead to creation of the gynecomastia in a young boy. More than 70 to 80% of patients में this just goes away with time, but 20 to 30% of children will continue to have gynecomastia and with years धीरे धीरे increase भी करते रहते हैं. Therefore, there is a specific condition called gynecomastia in teenagers, GIT, in which children continue to have gynecomastia for a long time and in many of them the problem is they suffer from lack of self-esteem. वो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, don't play sports, and so gynecomastia in teenagers is a very very important entity. So let's understand the other causes of gynecomastia. So we understood that the first cause is जिसमें puberty के टाइम पे hormonal rise होता है. Second cause, suppose liver disorder कोई है, क्योंकि third, suppose आपको कोई liver failure हो गया for due to any medicines, alcohol या brain tumors, या fourth is males में testis की development now, testosterone के levels कम हो जाते हैं and उसमें estrogen goes high
and therefore ये सब तो ये बहुत rare होती है. They account for only about 1% of all gynecomastias. Many patients ask me हमको टेस्ट क्या क्या कराने चाहिए. So in 99% patients we don't need any test at all. सिर्फ 1% patients जिनमें टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है या ब्रेन ट्यूमर्स है, they have other symptoms. Now टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी के क्या symptoms हैं? Height will be small because height increased टेस्टोस्टेरोन से होती है. फेस पे हेयर नहीं होंगे, आवाज हार्ड नहीं होगी, आवाज बहुत वॉइस इज वेरी फेमिनाइन, एंड ऑफ कोर्स बॉडी हेयर इज नॉट देयर एंड टेस्टिस डेवलपमेंट इज पुअर. सो ये एविडेंस, तो ऐसे में वी डू टेस्टोस्टेरोन टेस्टिंग. देन रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड. सो आई फील अल्ट्रासाउंड चेस्ट, सीटी चेस्ट एंड एमआरआई चेस्ट, देयर इज नो नीड फॉर एनी ऑफ दिस टेस्ट बिकॉज गायनेकोमास्टिया एक एग्जामिनेशन का डायग्नोसिस, इट्स अ क्लिनिकल डायग्नोसिस. Whether an ultrasound or CT or MRI says you have gynecomastia or not makes no difference. अगर आपको प्रॉब्लम है, then we need to do treatment. There are patients जिनकी चेस्ट नॉर्मल है एंड छोटा सा पफी निपल है एंड यहां पे इतना बड़ा ग्लैंड होता है एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल. नो अल्ट्रासाउंड विल पिक अप दिस ग्लैंड. कोई अल्ट्रासाउंड इसको पिकअप नहीं कर पाता है, बट आप तो परेशान है, therefore you need treatment. So therefore my advice, do not do any investigation unless there is a specific need for it. क्या कोई मेडिसिन काम कर सकती है? नाउ ये ग्लैंड को नथिंग कैन रिमूव दिस. फैट ऑल्सो, चेस्ट फैट बहुत बहुत सीवियर एक्सरसाइज करेंगे तभी जाके कम होता है. नो मेडिसिन, प्लीज आप कोई भी होम्योपैथी या कैंसर मेडिसिन, टेमोक्सिफेन वगैरह प्लीज मत लीजिए, आपको सिर्फ साइड इफेक्ट्स होंगे. सो द ओनली ट्रीटमेंट, ओनली एंड ओनली ट्रीटमेंट इज सर्जरी. सर्जरी, you have to, there are some preparative work, blood test etc. जो anesthesia के लिए we need to do that. Now how is the surgery done? So I think before that it is important, gynecomastia की classification. What are the grades of gynecomastia? So 1A is puffy nipple, जिसमें patients में only the nipple enlargement है, but there is no fat. 1B puffy nipple plus little bit of fat. तो local anesthesia में grade 1A हो सकता है. That is the importance of grade 1, grade 1A and 1B. Fat लेस देन 250. अगर 250 ml से कम फैट है तो मैं लोकल एनेस्थीसिया में करता हूं. दैट इज व्हाई आई डिवाइड इट लाइक दिस. 2A 250 से 500 ml फैट प्लस ग्लैंड, सो पफिनेस हो सकती है बट चेस्ट थोड़ी सी बड़ी होती है. 2B में देयर इज सम सैगिनेस, चेस्ट में लूजनेस है और देयर इज अ चांस दैट आफ्टर सर्जरी द चेस्ट में कम डाउन एंड देयरफॉर दिस प्लस स्किन लिफ्ट हम लोग करते हैं. सो क्विकली आई विल टेल यू अबाउट स्किन लिफ्ट. सपोज दिस इज द चेस्ट. नॉर्मली निपल सेंटर में होता है बट इन पेशेंट्स में निपल इधर होता है एंड देयरफॉर सैगीनेस की बहुत हाई चांसेस है. व्हाट वी डू, वी मेक अ स्मॉल कट हियर लाइक दिस, अनदर कट लाइक दिस, वी रिमूव दिस स्किन एंड देन स्किन निकाल दी हमने ऐसे, और इस पॉइंट को हम लोग ऊपर ले जाके निपल को यहां फिक्स कर देते हैं. देयरफॉर द निपल स्टार्ट्स टू कम इनटू मोर नॉर्मल पोजीशन. दिस इज skin lift procedure. 3A 500 to 1000 ml fat plus gland and 3B is plus skin lift. So this plus skin lift. So कुछ लोग होते हैं जिनकी चेस्ट बहुत बड़ी है and skin भी looseness है. So that is 3B. ये all these procedures are done under GA. ये general anesthesia में करे जाते हैं सारे procedures. So then there is grade 4. 4 is very large, more than 1000 ml of fat. और इनवेरिएबली इन पेशेंट्स में स्किन लिफ्ट इज मैंडेटरी. सो इतना बड़ा चेस्ट जो होता है दैट इज ग्रेड 4. नाउ ब्रॉडली हाउ इज द ट्रीटमेंट डन? सो ट्रीटमेंट इज ऑलवेज सर्जरी. हर पेशेंट जिसको गायनेकोमास्टिया है, चाहे वो 15 साल के हो चाहे वो 70 साल के हो, अगर वो अपनी चेस्ट को लेके परेशान है देन आई फील दे मस्ट डू द गायनेकोमास्टिया सर्जरी. देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसके रहते आप सर्जरी नहीं करा सकते, एक्सेप्ट अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या हार्ट की कंडीशन है. सो ऐसे में सर्जरीज नहीं करनी चाहिए. बट ऑल सर्जरीज, द बेसिक 2 स्टेप्स, लाइपोसक्शन, दूसरा ग्लैंड रिमूवल. ये 2 स्टेप्स हमको मैंडेटरी फॉर ऑल सर्जरीज. हाउ डू वी डू दिस? सपोज ये हमारी चेस्ट है, निपल एरिया एंड ये हमारा हाथ है. सो फ्रॉम हियर इधर से स्कार दिया जाता है वेयर इट्स नॉट विजिबल, इट्स जस्ट एग्जैक्टली दिस लॉन्ग, नॉट बिगर देन दिस. इसके थ्रू वी रिमूव ऑल द फैट. सो वी रिमूव ऑल द फैट इन द चेस्ट. साइड से जो भी है सारा फैट हम लोग यहां से निकाल देते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज द लाइपो प्रोसीजर. वंस द फैट इज आउट, सारा फैट एक बार हम निकाल देते हैं, देन
निपल के नीचे इधर आई गिव अ स्मॉल कट और यहां से ग्लैंड को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। स्टिच करने की एक स्पेशल टेक्निक होती है वेयर द वे इट इज डन मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स यू कैनॉट सी द स्कार। स्कार की विजिबिलिटी ही नहीं होती इन मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स। देयर आर सम डॉक्टर्स हु लाइक टू डू द कट फ्रॉम हियर एंड वो यहां से लाइपोसक्शन और ग्लैंड रिमूवल करते हैं। द ओनली रीजन आई डोंट डू इट इज, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हम सब जानते हैं कि कोई भी सर्जरी में देयर हैज टू बी अ स्कार, बॉडी पे कट होगा स्कार तो आएगा। निपल एरिया में देयर आर ऑलवेज दीस फोल्ड्स। अगर आपको डाउट है तो अभी शीशे में जाके देख लीजिए, आपके निपल में फोल्ड्स हैं। मैं स्कार को इन फोल्ड्स में छुपा देता हूं ऐसे, सो दैट जब वो हील होता है तो फोल्ड के अंदर ही छुपा रहता है। एंड दिस स्कार व्हिच अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स लाइक टू गिव, व्हेन दिस हील्स अप दिस विल हील एज अ लाइन। और अगर ये लाइन आएगी एंड आपने हाथ ऊपर किया तो यू ओनली टेल मी दिखेगी कि नहीं। आई डोंट थिंक कि वो इनविजिबल हो सकती है, whereas this you cannot see, and therefore that is why I do the surgery from this incision. The surgery on an average takes anything from 25 minutes to 1 hour 30 minutes. Grade 1A में around 25 minutes and grade 4 में almost 90 minutes लग जाते हैं। Same day discharge, 5 to 6 days के बाद 5 to 6 hours के बाद discharge. Next day so you can start your normal activities. अगर हमने skin lift किया है तो 21 days के बाद exercising. For all other cases 10 days you can start exercising, push-ups भी आप कर सकते हैं। Then there is something that you have to wear which is called a pressure garment. Pressure garment has to be worn for all gynecomastias. It is shaped like a jacket. Zip होती है, वो pressure देती है chest को अंदर squeeze करने के लिए। 3 weeks तक आप pressure garment पहनेंगे, so you will have a very very good chest. So what are the precautions that you have to take? First, always go to a plastic surgeon. कभी भी बिना प्लास्टिक सर्जन के ट्रीटमेंट ना कराएं। मेक श्योर प्लास्टिक सर्जन जिसको आप चूज करते हैं उनका क्रेडेंशियल्स हो, गो ऑनलाइन, रीड अबाउट देम, दैट इज वेरी एसेंशियल। अनफॉर्चुनेटली टुडे अ लॉट ऑफ स्किन स्पेशलिस्ट एंड जनरल सर्जन्स आर आल्सो डूइंग गायनेकोमास्टिया सर्जरी। मेरी एडवाइस है आप एक बार अपनी रिसर्च कर लीजिए, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप कर सकते हैं। मेक श्योर आपका फॉलो अप अच्छी तरह हो, ऐसा ना हो दैट यू डन सर्जरी एंड देयर इज नो वन टू फॉलो अप विद यू, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू। कैन गायनेकोमास्टिया रेकर बहुत मुश्किल होता है unless you gain lot of weight, you become heavy, you gain lot of weight and it can only then, secondly आप steroids अगर लेंगे तो gland बढ़ सकता है। Other than that, chances of recurrence are next to nil. Therefore, gynecomastia in the end, अगर मैं summary करूं, 1, very safe, surgery बहुत safe है। 2, effective, 100% patients में it is effective। 3, आपको कोई एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है। 4, आपको कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं है। सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। एंड लास्टली, हमेशा प्लास्टिक सर्जन्स के साथ ही आप सर्जरी अपनी प्लान करें, उनके बारे में थोड़ा स्टडी कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको ऐसे ही मिल सकते हैं। मेरी टीम से अगर आपको बात करनी है तो आप 9811994417 पे या मुझे ईमेल भी डाल सकते हैं info@divinecosmeticsurgery.com। एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना हो यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। एंड अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं सो गेट इन टच विद मी। थैंक यू सो मच।